What about uh, then we have Govind. Yes, Govind. Okay, next. Katyayani. Hare Krishna, Mataji. Hare My Krishna. name is Katyayani, and I am in first year of college, and my favorite food is chole bhature. Okay, very nice. हमारे घर में भी आफ्टर एवरी एकादशी छोले भटूरे बनता है. Okay. Yes. Next, Mehak Agarwal. It will be very nice if we can really have the videos on. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. My name is Mehak Agarwal and my favorite food is Rajma Chawal and I pursued I'm doing my first year in B Pharmacy. Okay. Very nice. Very nice. So what about Pranav? Pranav. Actually, see, ये एक ऐसे सेशंस नहीं है जहाँ पे हम लोग सिर्फ ठीक है आप आ रहे हैं सुन रहे हैं मतलब ये यूट्यूब वीडियो की तरह नहीं है. क्या यू कैन नॉट टर्न योर माइक ऑन. ओके मे बी यू कैन राइट. वर्णिका. वर्णिका. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा. My name is Varnika. I am in class 12th. My stream is mathematics, and I love food, so it does not matter कि खाना क्या है, मुझे बस खाना पसंद है. Yes, it's good, but so you are foodie type. जो होगा बस it should be palatable, right? Yes, I like food which is organized properly, and मुझे ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है हर जगह का फूड, लाइक वड़ा पाव जैसे कि मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग डिशेस आई लाइक टू ट्राई. तो कोई फेवरेट नहीं है, सब अच्छा लगता है. Very nice, very nice. तो कोई एक जगह की हम आगे डिस्कस करेंगे and then he'll ask you what is that one place which you like, the food of Okay, that particular place. okay. Yes, what about others? Manya. Manya is also here. Yes, Manya. My name is Manya Mehta and I love to eat Rajma Chawal and I am in standard 12. Okay. ठीक है, so I don't it is already 8. So we'll start with our session. So जैसे आप सब लोगों ने अभी अपना इंट्रोडक्शन दिया, so okay, Drishti will also give her introduction. Yes, Drishti. Hare Krishna, my name is Drishti. I'm a second year college student and my favorite food is also chole bhature. Okay, Ishita. Hare Krishna, my name is Usita. I'm also a second grade college student and my favorite food is pizza, pasta, anything. Okay, so I'll give a brief introduction about myself also. So myself Harshita Gorangi Devidasi and my favorite food is Rajma Chawal. I like to have Rajma Chawal. So अभी हम आगे डिस्कस करें. Okay, yes, Mayuk Prasad. What is your favorite food? Hare Krishna. My name is Mayuk Prasad. I am in 12th standard and I like every food, every type of food, but my most favorite is lasagna. Lasagna. Yeah. Okay, very nice. I think it is very difficult to make also. So I hope you also know someday how to make it. Yeah. Okay, so we'll get to know Hare more. Krishna. Hare If you Krishna. don't mind, can I give a brief introduction about you? Yeah, yes. नहीं तो I'll give. मैं करती हूँ. So it will be Alright. more वो ठीक है. So I'll just give a brief introduction about myself क्योंकि ऐसे नहीं होना चाहिए. आप लोगों को लगे कि अब तो आ गए हैं यहाँ पे थोड़ा लेक्चर होएगा
ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ लेक्चर फोरम नहीं है। क्यों? एक मिनट, मैं आपको म्यूट कर दूं। आई जस्ट मेक दृष्टि एंड निशिता को होस्ट सो दे कैन म्यूट अगर बीच में कोई बोले तो। जब बोलना है देन यू कैन, बट कभी कभार अचानक से होला। ठीक, ओके। सो आई जस्ट गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको लगे अब तो यहाँ पे लेक्चर होने वाला है, ये यहाँ पे तिलक लगाया हुआ है, अभी हमें क्या बोलेंगे। मंदिर आ जाइए, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़िए और सीधा मंदिर में आके क्या बोलते हैं, करताल बजाना शुरू कर दीजिए। तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। So I'll give a brief introduction about myself. I joined ISKCON when I was 8 years old and now I'm 24. So जिस एज में अभी आप लोग हैं, टीन एज, आई हैव गॉन थ्रू दैट एज। एंड ऐसा नहीं है बहुत पुराने टाइम में गया है, तो ऐसा होता है ना, हम लोगों को अपने पेरेंट्स के साथ लगता है मम्मी पापा आप नहीं समझोगे, हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है, आपको क्या पता अब पढ़ाई कितनी मुश्किल है, अब ये कितना मुश्किल है। ऑब्वियसली वी कैन रिलेट कि मम्मी पापा की जो एज है वो अलग है, हमारा जो टाइम में पढ़ाई है वो अलग है। सो यस देयर इज अ डिफरेंस, बट स्टिल आई एम क्लोजर टू योर एज, तो आप लोग थोड़ा ज्यादा रिलेट कर पाएंगे मेरे साथ। सो बाय एजुकेशन आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। और ऐसा नहीं है कि अब आपने सोचा कि अरे 8 साल की उम्र में आ गई थी तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी होगी, ऐसा नहीं है। आई हैव डन माय एमबीए आल्सो फ्रॉम NMIUMS बॉम्बे। आई वर्कड इन ग्रैंड थॉर्नटन, एक MNC है, MNC मींस मल्टीनेशनल कंपनी, तो वहां पे मैंने जॉब करा। देन आई आल्सो वर्कड इन अ स्कूल एज अ होलिस्टिक डेवलपमेंट ट्रेनर, एंड अभी मैं अपने एक स्टार्टअप पे काम कर रही हूँ। सो यस, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। तो ये क्यों आया कि हमें टीनेजर्स के लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज वी अंडरस्टूड कि जो बड़े लोग हैं कहीं ना कहीं एक जनरेशन गैप लग रहा है, क्योंकि उन्हें वो प्रॉब्लम समझ में नहीं आ पा रही है कि हम क्या फेस कर रहे हैं। सो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हाँ, थोड़ा सा तो लगता है, समझ में नहीं आता है कि वो लोग हमारे बात समझ नहीं पा रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील इट? एंजल, राधिका, हु एल्स? मुझे भी लगता था, मैं जब थी टीनेज में, मैं मम्मी से कहती थी मम्मी अभी आप नहीं समझोगी, इतना मुश्किल है ना ये, मम यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। हाउ मेनी ऑफ यू फील? यस, एनीवन एंड एवरीवन। एंड दिस इज, ऐसा नहीं सिर्फ हम लोग फील कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई वुड वंस अगेन रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज स्विच ऑन द वीडियोस। अगर किसी के पास ऐसा जी बिल्कुल ही नेट ही नहीं है, अदरवाइज इट इज वेरी, वरना ना भी ऐसा लगता है कि हम किसी ब्लैक स्क्रीन से बात कर रहे हैं। Very important to have videos on. Hare Krishna Gauri, Hare Krishna Arna, Varnika, और भी सब लोग, प्रणव, शौर्य, सानवी, सुहानी, विहान, दीपिका, रिया, others quickly please। ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है why we have come up here today and what is the basic agenda? या मम्मी पापा ने बोल दिया इसीलिए कर रहे हैं, बताइए। So we all can discuss, please. What do you think? ये जो हमारे 4 days के जो सेशन होने वाले हैं, हम इसमें से क्या लेके जाने वाले हैं? आप सबके पास अनम्यूट करने का ऑप्शन है, यू ऑल कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्व्स, है ना? एंड आप में से कोई हैंड रेज करके बोल सकता है। एंड यस, ये जैसे गैलेक्सी टैब A7 आ रहा है, सो रिक्वेस्टिंग अपना नाम लिख दें पूरा, तो इट वुड बी वेरी नाइस। यस आरना, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या डिस्कस करेंगे हम? अनम्यूट अनम्यूट। हम लोग टीनेज की प्रॉब्लम्स एंड उनके सॉल्यूशंस के बारे में, कि टीनेज में क्या करना है, इसके बारे में डिस्कस। यस, व्हाट एल्स? आज Yes. मुझे मार्केट करना बड़ा मजा आया शाम में। क्यों? क्या? पहली बार हुआ, नहीं तो होता नहीं कभी ऐसा। Yes, others, please.
कात्यायनी, राधिका, यस राधिका बोलो। माताजी, maybe इस सेशन से maybe we'll know कि self management कैसे करते हैं, how to handle ourselves and our emotions too. Yes. So, how many of you want to be successful in your life? You all can raise your hands. 100%, right? We all wish to be successful. तो अभी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि सक्सेस के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं। तो आप लोग चैट में लिख सकते हैं क्योंकि लोग हैं हमारे पास, तो ऐसे बोलना बार बार थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। तो आप सब लोग चैट पे लिख सकते हैं कि अगर हम एक सक्सेसफुल बंदे को इमेजिन करें तो वो कैसा दिखता होगा, और या उसके पास क्या क्या होगा। हैप्पीनेस, अच्छा ठीक है, और पीस, लग्जूरियस लाइफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मनी, यस वेरी गुड, मनी, और satisfied, very good, productivity, very good. So let me give you how many of you like stories? Real life example I'll give you. You all know Michael Jackson? How many of you know Michael Jackson? Michael Jackson जो थे, he was a very big dancer. He was a very big dancer. But do you know how did he die? He died out of over usage of drugs. Over usage of drugs. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि I have everything, but still I feel lonely. But still I feel lonely. अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया? अगर हम एक सक्सेसफुल बंदे को इमेजिन करें तो वो कैसा होगा? उसके पास सबसे पहले मनी होगी, राइट? सक्सेसफुल व्यक्ति के पास मनी होगी, और ये सही भी है। दूसरा, उसके क्या होंगे? फॉलोअर्स होंगे, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, वैल्यू करेंगे। माइकल जैक्सन क्या अमीर थे? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ रिच माइकल जैक्सन वाज? कोई जल्दी से गूगल करके बताएगा? Who can Google and tell me what was the net worth of Michael Jackson? $2.4 billion. 2.4 billion. Billion. 2.4 billion. It is over net. 2.4 billion. So just imagine, ये उनकी net worth थी, but still he said he died out. He feel lonely. अगर कोई आप सबके आई एम श्योर इंस्टाग्राम पेजेस होंगे। कौन कौन है इंस्टाग्राम पे? मैं हूं। आई एम देयर। हु एल्स? दृष्टि। अदर्स आर आल्सो देयर। सो आप वहां पे माइकल जैक्सन टाइप करेंगे, आप उसके नंबर ऑफ फॉलोअर्स देखिएगा। दे आर इन मिलियंस। They are in millions. Still he said he is lonely. Why he is lonely then? अगर एक व्यक्ति की सक्सेस हम इससे डिफाइन कर रहे हैं कि वो कितने सक्सेसफुल है, वो मनी से, लग्जरी से, आप सोचो आपके पास, ओके ये तो हमने उसकी डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया डाउट आउट ऑफ लोनलीनेस, पर आप कहोगे माता जी अभी ना आपको पता नहीं है, पैसा होता है ना व्यक्ति सब खरीद सकता है, अभी यू डोंट नो। यस, मनी कैन गेट अस मीन्स फॉर हैप्पीनेस, बट मनी कैनॉट गेट अस हैप्पीनेस। मीन्स ऑफ हैप्पीनेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इस कमरे में बैठी हूँ तो मैंने एसी चला रखा है, तो ना आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, तो ये क्या है? मीन्स ऑफ हैप्पीनेस, बट दिस डज नॉट मीन्स हैप्पीनेस। ऐसे ही माइकल जैक्सन के पास क्या था? उनके पास बहुत लग्जरियस घर था, उनके पास बहुत सारे नौकर थे, उनके पास इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग थी, but still he was lonely. How many of you have ever felt lonely in your life? You have felt कि यार बहुत बहुत ज्यादा ना प्रेशर हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी लोनली, मेरा मन है किसी को बात बताने का, बट आई हैव नो वन टू टेल।
How many of you have faced this in your life? You all can raise your hands. Right? Anyone and everyone. We all face this. जब हमें ये लगता है कि मेरे हार्ट में बहुत कुछ है बट मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे हार्ट में बहुत कुछ है बट मैं किसी से शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, एंड द ओनली रीजन इज बिकॉज वी डोंट फाइंड कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हम कन्फाइड कर सके, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हम कन्फाइड कर सके, बिकॉज ये जो वर्ल्ड है दैट इज सो मीन दीज डेज. Am I right or wrong? You all can please be active on chats. Yes, we all can share our hearts with our mothers, with our fathers. And at times हम लोगों को लगता है कि नहीं, वो भी हमारी बात हम उन्हें नहीं समझा पा रहे हैं. Right? तो हमें बहुत जरूरी है कि हम ये समझें कि लाइफ में हमें मीन्स ऑफ हैप्पीनेस चाहिए. Nobody is saying कि प्लीज आप पैसा मत कमाओ, पैसे से खुशी नहीं मिलती. Yes, we all need money, but at the same time we need something else. So I'll give you a brief example of Mr. Alfred Ford. How many of you have heard the name of the car Ford? Ford company कौन कौन जानते हैं? मयूख जानते हैं, और कौन कौन जानते हैं? रुद्राक्ष, yes, all the boys must be knowing, and I'm sure girls also. Radhika also knows, Manya knows, Sanvi knows. Yes, anyone and everyone knows, right? Ford company. तो Ford company के जो ओनर हैं, he is a very very big man and he is living a very peaceful life. He is earning money also, and at the same time he's living a balanced life. So we'll read more about him in the upcoming sessions, but today we'll go into the topic जो आज हम डिस्कस करने वाले सेल्फ केयर के बारे में. ठीक है? Are you all ready and are you all excited to know about this topic more? या फिर लग रहा है माता जी बहुत बोरिंग हो गया है? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? फीडबैक प्लीज. There. Okay, yes. Let me do. Is my screen visible? Yes. Am I visible? Yes. Yes. And am I audible? Yes. Yes. Good. ठीक है. So today we'll discuss about self-care. Oh, sorry. ठीक है. तो any one of you can please raise your hand and tell me what do you understand by the term self-care? या आप लोग लिख सकते हैं, मतलब चैट में लिख दीजिए, बोलिए मत, चैट में लिख दीजिए. दृष्टि, कैन यू रीड देम? नहीं नहीं, ठीक है, मुझे दिख रहा है यहाँ से. ओके. सेल्फ केयर में क्या क्या आता है? टू टेक केयर ऑफ आवर सेल्फ. यस, तो पर कैसे रखनी चाहिए केयर? बाय बीइंग पॉजिटिव. यस. एक्सरसाइज. यस, वेरी नाइस. यस, फिजिकल एक्सरसाइज. मेंटेनिंग हाइजीन. यस, वेरी गुड. पर्सनल हाइजीन करते आई नहीं. यस. तो तोशनी ने बोला सेल्फ केयर refers to caring ourselves and keeping us healthy emotions and physically by doing things that makes us happy, meditation, balanced diet. So यहाँ पे तो सारे लोगों को बहुत कुछ पता है. Very nice. I am very happy. So let us discuss कि
डेफिनेशन क्या कहती है सेल्फ केयर की? सो सेल्फ केयर की डेफिनेशन है, सेल्फ केयर इज टेकिंग इंटेंशनल एक्शंस टू प्रिजर्व एंड इंप्रूव योर फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग। तो इंटेंशनल एक्शंस, तो यस, हमें हर किसी से इजीली कनेक्ट नहीं होना चाहिए, उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? इंटेंशनल एक्शंस। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम अनइंटेंशनली करते हैं और कुछ चीजें होती है जो हम इंटेंशनली करते हैं ताकि हमारी क्या सही रहे, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। बट कभी कभार, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हम, हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे फ्रेंड्स, हम सब इन तीनों चीजों को क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट। हम सब इनको क्या कर देते हैं? निग्लेक्ट। So today we will discuss briefly about each of these, matters. अच्छा, तो आप लोग बताइए चैट के थ्रू ही, आप लोगों को क्यों लगता है why is self care important? All of you can please tell, why do you think self care is so important? I will read from chat. For overall well-being, to understand ourselves. Yes. What else? To reach out our maximum productivity. Yes, so there are coming many, and I have listed to remove us from negative thoughts. Yes. So I list down some, and these are. So the first is reduces stress and anxiety. हम में से कौन कौन अपनी लाइफ में कभी कभार स्ट्रेस फील करता है? किस किस को स्ट्रेस होता है? अरे दोबारा से मंडे आने वाला है, दोबारा एग्जाम है। हाउ मेनी ऑफ अस फील स्ट्रेस्ड? यस, एवरीवन। किस किस को डर लगता है आज काम नहीं करा है स्कूल में और अब दोबारा से टीचर डांटने वाली है? एवरीवन। सेल्फ केयर से हम क्या फील करते हैं? कॉन्फिडेंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हेल्दी, तो मैं क्या फील करूंगी? कॉन्फिडेंट। हेल्दी इन द सेंस इफ माय बॉडी इज फिजिकली एक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मान लो स्कूल के किसी ट्रिप पे जाना है, ठीक है, तो अगर हमें वहां पे कुछ ट्रेकिंग करनी है या फिर कहीं बस के थ्रू ट्रेवल है, बट इफ आई एम फिजिकली वीक, देन मुझे मन ही नहीं करेगा मैं जाऊं, या मैं बहुत डरती रहूंगी। इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। कैसे हेल्प करती है हमारी अगर हम लोग सेल्फ केयर करते हैं? तो फिजिकल हेल्थ कैसे करती है हमारी हेल्थ? हम लॉन्गर टाइम तक अपनी बॉडी को यूज कर सकते हैं हमारे गोल्स को अचीव करने में, राइट? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? आई विल टेल यू। मेरी जो सिस्टर है, शी इज परसुइंग लॉ। तो वो क्या करती थी, वो जब पढ़ती थी, वो क्या करती थी, मम्मी की गोदी में अपना सर रख लेगी और मम्मी से कहेगी मम्मी आप रीड करो, और मम्मी रीड कर रही है और वो सुनती थी और उसे याद हो जाता था। वो पढ़ती चाहे दिन में सिर्फ 2 घंटे थी, पर वो जब पढ़ती थी तो बहुत कंसंट्रेशन से पढ़ती थी, तो उससे क्या हो गया, उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट, सेल्फ केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? इट गिव्स हैप्पीनेस। किस किस को अच्छा लगता है जब वो कभी किसी वेकेशन पे जाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू फील हैप्पी वंस यू कम बैक फ्रॉम योर वेकेशन? सानवी, यस। Vedika. Yes, so many hands up. So everyone feels happiness and it gives satisfaction. अच्छा, तो बताइए आप में से किस किस को लगता है कि who should do self care? बताइए किसको करें? पड़ोस वाली आंटी को बोल दें, या फिर यस, राधिका अग्रवाल ने कहा एवरीवन। बट क्यों एवरीवन को क्यों करना चाहिए? एवरीवन को क्यों करना चाहिए सेल्फ केयर? So someone who wants to be happy. Someone who wants to be happy. जिस व्यक्ति को भी खुश रहना है उसे क्या करना चाहिए? हैप्पीनेस को। जिस व्यक्ति को भी हैप्पी रहना है उसे क्या करनी चाहिए? सेल्फ केयर। सेल्फ केयर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स दैट वी निग्लेक्ट ऑफन।
हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग कुछ गोल्स को अचीव करने के चक्कर में कि हम अपनी जो वैल्यूएबल इमोशंस हैं हम उन्हें क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। हम उन्हें क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट। बट वी शुड नॉट निग्लेक्ट आवर इमोशंस। सो हमने सेल्फ केयर को 4 कंपोनेंट्स में बांटा हुआ है, 25 25 25 25। फर्स्ट इज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सीक्रेट। This we'll discuss. So let us break down. First is physical self care. तो physical self care क्या होती है? ये बहुत ही common है and generally in teenage we often get very used to it कि हम लोग अपनी life को बहुत sedentary बना दिया है हमने। So how many of you go and play outside? अच्छा मैं एक मिनट screen share stop करती हूँ। So how many of you go and play outside these days? Tell me. या आप कहोगे माता जी क्या आप पूछ रहे हो, टाइम ही नहीं मिलता, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, ये ट्यूशन वो ट्यूशन, टाइम कहाँ है? कुछ नहीं है फिजिकल, हम पबजी खेल लेते हैं। आई डोंट गेट टाइम ड्यू टू स्टडीज। सो हाउ, अच्छा ठीक है, हाउ क्वेश्चन रिवर्स करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू डोंट गेट टाइम टू go for any physical exercise या फिर cycling या फिर swimming or even just play outdoor with your friends? So many of you, right? But let me tell you, ये जो teenage life है ना, अभी ये best life है। जितना खेलना है ना अपने दोस्तों के साथ अभी खेल लो, क्योंकि जैसे जैसे हम एज में बड़े होते हैं ना कहीं हम सेल्फ केयर में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, फिजिकल फिटनेस, ये भूल जाते हैं। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रोज ही 1 घंटे जा रही हूँ खेलने, नहीं होता, बट एटलीस्ट याद रखना चाहिए कि हमें अपनी फिजिकल बॉडी के लिए कुछ करना है, नहीं तो फिर जो प्रॉब्लम्स आती है वो हमें ही फेस करनी पड़ती है। कोई और हमारे लिए, एवरीवन कैन जस्ट बी पिटी फॉर अस, बट प्रॉब्लम हमें ही होती है। सो आप लोगों को क्या लगता है फिजिकल फिटनेस हम कैसे रख सकते हैं? चैट ओके, लेट मी सी। एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं करता मेरा, तो क्या करें हम? क्या करना चाहिए? योगा, यस। व्हाट एल्स? प्लेइंग स्पोर्ट, यस। प्लेइंग स्पोर्ट्स इज बेस्ट। फिजिकल एक्सरसाइज के लिए प्लेइंग स्पोर्ट्स इज बेस्ट। गो एंड प्ले। मुझे याद है व्हेन आई वाज इन टीनेज, मैं अपनी फ्रेंड के साथ स्विमिंग के लिए जाती थी, मैं बैडमिंटन खेलने जाती थी। तो जब हमारे पास एक पार्टनर होता है, यस, गेम्स विद फ्रेंड्स, क्रिकेट हो गया, बैडमिंटन हो गया, कोई भी ऐसा गेम हमें चूज कर लेना चाहिए जो हमें पसंद है एंड फिर हमें वो खेलने जाना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है वीकडेज में हमारे पास टाइम नहीं है, मान लीजिए बिल्कुल टाइम नहीं है, बट एटलीस्ट हाउ मेनी ऑफ यू कैन ट्राई टू गो एटलीस्ट once a week to go out and play with your friends? How many of you can try? Yes, Radhika, Gauri, Mayuk. What about others? Varnika? Yes. Yes, you all can try. We all can try. And बहुत मजा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? अभी हमने डिस्कस किया, आप लोगों ने बोला पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन क्या है? अभी तो वैसे ही सर्दी आने वाली है, हमें लगता है कि अब बस आ गई है सर्दी, अब हमें नहीं जाना है बाथरूम के अंदर, जाना है और बस कौवा स्नान करके आ जाना है। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि 3 दिन में एक बार नहा लिया तो सही है, अब तो सर्दियां है ना, हम कौन सा गंदे हो रहे हैं, सारे दिन तो हम एसी में होते हैं। The mentality of so many of people, right? But we should understand कि हम जिस एरिया में रह रहे हैं इंडिया में, यहाँ का जो टेम्परेचर बहुत गर्म है और यहाँ पे we all should take bath regularly, very regularly. Yes, very good for all those who are taking bath regularly.
and those who are not, they can also please try. एक मिनट में बस पावर पॉइंट चला. यस, तो हम क्या कर सकते हैं? डू योगा, गो आउट विथ प्ले विथ फ्रेंड्स, बात लें, ईट गुड फूड. अब हमने वो, आप में से किस किस ने वो तिरुपति बालाजी का केस सुना है? जिसमें वो लड्डू में प्रॉब्लम आ रही है, सुना था? सबने सुना? यस, एवरीवन. सो जस्ट इमेजिन अगर मंदिर के प्रसाद में लोग ऐसे कर रहे हैं, कैन वी ट्रस्ट दीज वेंडर्स जो बाहर के होते हैं, जिनके पास पैसे भी कम होते हैं? क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो लोग बेस्ट क्वालिटी का ऑयल यूज करते होंगे? नहीं करते, बट हमें पसंद है. तो हमें कोशिश करनी चाहिए, सबसे पहले तो हम ये एटलीस्ट स्ट्रीट वेंडर से ना खाएं. वी शुड ट्राई टू ईट फ्रॉम सम रेप्यूटेड प्लेसेस, अगर अभी हम खा भी रहे हैं तो, बट ऐसे ही कहीं से नहीं खाना चाहिए. एंड जितना हम होम कुक्ड मील लेते हैं, दैट हेल्प्स अस टू नरिश आवरसेल्व्स मोर. सो ये बहुत ही बेसिक था, इसीलिए इसके ऊपर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. ये आप लोग कर सकते हैं घर पे भी, ये आपने ऑलरेडी बहुत बार सुना है. ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इमोशनल सेल्फ केयर. क्योंकि फिजिकल सेल्फ केयर क्या होती है, हमें रोज दिख रहा है, अच्छा मैं मोटा हो रही हूँ, मैं पतली हो रही हूँ, मैं लंबी हो रही हूँ, मैं छोटी हो रही हूँ, ये हमें दिखता है. पर इमोशंस हमें दिखते नहीं है, तो हम इसको क्या ले लेते हैं? फॉर ग्रांटेड. तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज इमोशनल सेल्फ केयर. एंड दैट इज, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, नो दैट यू आर नॉट अ रोबोट एंड यू हैव डिफरेंट फीलिंग्स. अच्छा, आप में से कौन कौन है जो सोचता है कि हम एक रोबोट हैं, हम सिर्फ, हमें कोई कुछ भी बोल जाए हमें कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता? आप में से किस किस को ऐसा लगता है? कोई भी नहीं, राइट? अगर हमें कोई कुछ बोलता है तो हमें उससे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? इमोशंस है. नेक्स्ट हमें क्या करना है? वी हैव टू एक्नॉलेज कि जो ईच डे है हमारी लाइफ का, वो सेम नहीं होगा, और ना कभी हुआ है, ना कभी सेम था, ना कभी हुआ है. अच्छा एक बात बताइए, आप में से आज, ओके एक मिनट, थोड़ा सा रुकते हैं और पूछते हैं जरा लोगों से. बताइए, आप में से, यू ऑल कैन टाइप ऑन चैट, आप में से किस किस को लगता है कि, अच्छा आपका दिन आज का कैसा गया था? आज आपने क्या, ठीक है मैं पूछती हूँ किसी से. ओके गौरी. सो गौरी, आज आपका दिन कैसा रहा था? आपने कैसा बोला था? कैसा था आज का आपका दिन? ठीक था. वीडियोस ऑन प्लीज एवरीवन. वेदिका ने कहा गुड. अच्छा, एक हफ्ते पहले कैसा था? माता जी याद नहीं है. याद ही नहीं है, वेरी गुड. और बट क्या होता है, डेज कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, बट वी डोंट हैव टू स्टक, कि हमें ऐसी नहीं होनी चाहिए, अरे कल का दिन बुरा गया था इसका मतलब अब जो आज का दिन है वो भी क्या जाएगा बुरा. हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए. हर डे क्या होएगा? डिफरेंट. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सोचते हैं जैसा मेरा आज का दिन अच्छा, इतना अच्छा गया, वैसा ही मेरा नेक्स्ट डे हो, वैसे ही मेरा नेक्स्ट डे हो. यस, माय एग्जाम्स आर कमिंग, सो डेज आर लिटिल स्ट्रेसफुल. यस, किस किस ने एक्सपीरियंस करा है? जैसे एग्जाम्स करीब आते जाते हैं, वैसे स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है. यस, कत्यायनी ने बता रही है कि उसका लेवल, और कैसे, और कैसा लगता है जब समर वेकेशंस आने वाली होती है, तो कैसा मूड होता है? रिलैक्स्ड, फन. फिर टीचर कुछ होमवर्क दे भी देती है तो ठीक है, कर लेंगे बहुत टाइम है, होता है ना? वी फील हैप्पी. So these are the different emotions which we all experience. These are the different emotions which we all experience.
You all can write these points. Like first point is knowing that we are not robots, we have different feelings. Second is acknowledging each day cannot and will not be same. Third is analyze what triggers my different emotions. So अगर हम क्या देख सकते हैं, हम लोगों के अलग अलग इमोशंस होते हैं. हम लोगों के क्या होते हैं, अलग अलग इमोशंस. जैसे कभी कभार हम हैप्पी फील करते हैं, कभी कभार हम सैड फील करते हैं, कभी कभार हम स्केर्ड फील करते हैं. पर हमें एनालाइज करना चाहिए कि हम कब अपने जो डिफरेंट इमोशंस होते हैं, हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं. जब हमें ये पता चल जाएगा ना हमारे ट्रिगर पॉइंट्स क्या हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से अपने आप को we all can make ourselves more comfortable with our emotions. जैसे हमें लग सकता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ. आई फील गुड. 1 मिनट. आई फील वेरी गुड व्हेन आई स्पेंड टाइम विद माय फैमिली. मुझे गुस्सा आ जाता है जब चीजें मेरी तरीके से नहीं होती हैं. मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है जब चीजें मेरी तरीके से नहीं होती हैं. फिर क्या है, हेलो, मैम am I कैन यू audible? रिपीट, आपने क्या बोला था, वो सुनाई नहीं आ रहा था. सॉरी, कहाँ पे थे हम? सॉरी. सो यस, हमें अपने आप को लिखना चाहिए कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो मुझे डिफरेंट इमोशंस ट्रिगर कर रही हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई गेट स्कैर्ड जब मुझे कहीं अकेला जाने के लिए बोला जाए, या फिर आई फील लव्ड जब कोई मेरे लिए एफर्ट डालता है. आई फील लोनली. हमें लिखना चाहिए, हमें डिफरेंट इमोशंस लिखने चाहिए, और हमें ये लिखना चाहिए कि हम डिफरेंट इमोशंस कब एक्सपीरियंस कर रहे हैं. लव्ड, केयर. आप लोग ये एक्टिविटी करिएगा और ये लोग ग्रुप पे डालिएगा, ठीक है? एक एक्टिविटी करिए, लिखिए फीलिंग ऑफ लव्ड, केयर्ड, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, एंड फिर लिखिए ये कब कब होता है. तो हम लोग ऐसे इमोशंस को चेक कर सकते हैं कि हम इन सिचुएशन से बच जाएं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नोटिस किया अपने अंदर. आई टेल यू, जब चीजें मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती है ना, तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ. सो आई फील वेरी इरिटेटेड कि यार ये क्यों नहीं हो रहा मेरी. हाउ मेनी ऑफ यू फील लाइक दिस? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि जब चीजें आपकी तरीके से नहीं होती, यू फील इरिटेटेड? यस, एवरीवन, एवरीवन. अच्छा, आप में से कौन कौन यू फील लव्ड जब कोई आपके लिए एक्स्ट्रा केयर? यस, वर्णिका ने लिखा आई फील इरिटेटेड व्हेन पीपल मिसअंडरस्टैंड मी. तो हम ऐसे कॉलम बना सकते हैं. सो दिस इज द एक्टिविटी फॉर टुडे. तो क्या करना है, आपको लिखना है ये एंगर मुझे कब कब आता है. आप उधर 4 लिखिए कि यहाँ तब तब आता है. आई फील फ्रस्ट्रेटेड, ये. आई फील लव्ड जब एनीवन टेक्स एफर्ट्स फॉर मी, जब कोई मुझे टाइम देता है, जब कोई मुझे मेरे लिए कुछ अच्छा कुक करके लाता है. सो आई फील लव्ड, केयर्ड. ठीक है, तो दिस विल हेल्प अस टू टेक अ बेटर डिसीजन. आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल. मैं मेन एंड वुमेन की साइकोलॉजी पढ़ रही थी, तो मैंने ये रियलाइज किया, ये मेन का नेचर है कि उन्हें अच्छा लगता है जब उन्हें कोई अथॉरिटी दी जाए या पावर दी जाए, और वो उस अथॉरिटी को क्या करें, एक्सरसाइज करें. एंड मैंने पढ़ा जो वुमेन है, दे फील वेरी लव्ड, केयर्ड जब उन्हें कोई सुने. मेन के अंदर जनरली प्रॉब्लम होती है, या फिर मेन के अंदर ये है कि वो चाहते हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए जब कोई प्रॉब्लम है, एंड दे वांट सॉलिट्यूड. बट इन केस ऑफ वुमेन but in case of women what do? We like when we talk to someone.
तो ये डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हैं। तो कभी कभार ऐसे घर में मान लीजिए लड़ाई हो जाती थी मेरे पापा से, तो ना पापा क्या है, थोड़ी देर के लिए ना शांत हो जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी उन्हें थोड़ा मनाऊंगी। बट बाद में मैंने रियलाइज किया कि दिस इज दी थ्योरी, दिस इज दी साइकोलॉजी। हमें ना इरिटेट नहीं होना चाहिए इस चीज से। तो हमें साइकोलॉजी समझनी चाहिए, और हमें अपनी साइकोलॉजी सबसे पहले समझनी चाहिए। ऐसी क्या चीजें हैं लाइफ में जो मुझे गुस्सा दिलाती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं लाइफ में जिनसे मुझे डर लगता है। तो फिर हम उन सारी सिचुएशंस को क्या कर सकते हैं, अवॉइड। हम ऐसी सिचुएशंस को क्या कर सकते हैं, अवॉइड। नेक्स्ट स्टेप 4 इज लर्न टू से नो टू पीपल विद whom you are not comfortable। हमें ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्ट है। हम लोग कहीं ना कहीं क्या बन गए हैं, पीपल प्लीजर्स। मेरा मन नहीं है उस पार्टी में जाने का, पर मैं तब भी जाऊंगी। मेरा मन नहीं है कि मैं इसके साथ ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करूं, पर मैं तब भी करूंगी, क्योंकि नहीं वरना उससे बुरा लग जाएगा। मुझे पता है कि रात को ना पार्टी में जाना सेफ नहीं है, बट ना क्योंकि सब जा रहे हैं तो मुझे भी जाना पड़ेगा। बट इफ आई एम नॉट कंफर्टेबल देन आई विल नॉट गो। आई विल टेल यू फ्रॉम माय ओन एग्जांपल। मेरे साथ क्या मतलब, ये सब पीपल कंफर्टेबल नहीं है, इसके अंदर ये भी है कि आप किस किस चीज में वैसे कंफर्टेबल है। तो मेरे कॉलेज की फ्रेशर्स थी। तो कमला नेहरू कॉलेज इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड इज एन ऑल गर्ल्स कॉलेज। तो जब मैं उस कॉलेज में गई तो वहां पे फ्रेशर्स थी। जिन बच्चों को नहीं पता फ्रेशर्स क्या होती है, फ्रेशर्स इज अ फॉर्मल, यू कैन से पार्टी, जहाँ पे जो फ्रेशर्स होते हैं, फ्रेशर्स में जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें जो उनके सीनियर्स होते हैं वो वेलकम देते हैं, और डांस होता है, एक्टिविटीज होती हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वहां पे थीम था कि वी ऑल हैव टू वेयर समथिंग वेस्टर्न। ठीक है, वेस्टर्न पहनना था। तो एवरीवन वाज वेयरिंग वो ड्रेसेस पहन रहे थे वो। बट मैं अपनी स्किन में इतना कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं ड्रेस पहनूं। तो मैंने एक गाउन बनवाया था अपने लिए, बहुत सुंदर सा गाउन था। तो वहां जाके किसी ने मुझे कहा कि अरे हम लोगों ने तो ड्रेस पहनी है, तुमने क्यों नहीं पहनी। लेकिन बिकॉज दैट इज व्हाट आई एम कंफर्टेबल इन। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेस दिस कि कभी कभार हम किसी और की खुशी के लिए ऐसे ऐसे कपड़े पहन जाते हैं, बट हम उसमें कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम बस उनके लिए पहन गए हैं। हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दैट, राइट? सो मेनी ऑफ अस। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमें किसी और की प्लीजिंग के लिए हमें कपड़े नहीं पहनने हैं, हमें अपना समझना है। और हमें जो लोग जिनके साथ हम कंफर्टेबल नहीं है, हमें उनके साथ एसोसिएट भी नहीं करना है। नेक्स्ट इज learn to say yes to the people who are good for your holistic development, even if staying with them is difficult at times। जैसे हमारे पेरेंट्स, कभी कभार होता है ना, हमारे पेरेंट्स इसमें भी रोक टोक, इसमें भी रोक टोक, इधर भी ये नहीं करना, वो नहीं करना, टीचर भी बोलेगी ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो हम क्या लगता है, हमें लगता है छोड़ो। तो माता जी अब आपने बोल दिया है कि आप गए, अब हमें कुछ नहीं बोलना है। अब ठीक है, आपने बोल दिया लर्न टू से नो, तो हम बोल देंगे मम्मी नो, नो पापा मैं ये काम नहीं करूंगी, नहीं मम्मी टीचर मैं ये काम नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है। जो लोग हमारा वेल विशर्स हैं, जो लोग हमारे वेल विशर्स हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, चाहे वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, बट स्टिल हम उनके साथ रहने की कोशिश कर सकते हैं। और हमें समझना चाहिए कि ये हमारे लिए क्या है, जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किस किस ने कभी एक बटरफ्लाई को देखा है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन अ बटरफ्लाई? बटरफ्लाई को देखा है कभी? आपको पता है वो किस में से आती है? किस में से आती है वो एक? प्यूपा। प्यूपा। और उसके बाद क्या बनता है प्यूपा में से? कुकून। यस। और जो कुकून बनता है वो क्या होता है? अब वो जो कैटरपिलर होती है, जो कुकून बनता है,
उसके अंदर if सोचो उससे ना बहुत पेन होता है. That is not a very easy process. That is not a very easy process. उसके अंदर वो पेन से निकल रही है, बट जब वो पेन से निकल रही है तो वो क्या बन रही है? बटरफ्लाई. क्या बन रही है वो? बटरफ्लाई. पर हाँ हम सोचे, ओ शी मस्ट बी फीलिंग सो मच ट्रबल, सो मच पेन. मैं क्या करता हूँ? उसको काट देता हूँ, कुकून को काट देता हूँ. सो हाउ मेनी ऑफ यू फील कि वो ब्यूटीफुल बटरफ्लाई निकल पाएगी? क्या वो निकलेगी? यस, नहीं निकलेगी, राइट? ऐसे ही हम सब की लाइफ में भी हम सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं. वो हमें क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग. वो हमें क्या बनाती है? स्ट्रॉन्ग. और जितना हम इन सारी चीजों से स्ट्रॉन्ग बनेंगे, उतना हम लाइफ में क्या करेंगे? ग्रो करेंगे. एट टाइम्स स्टडिंग माइट फील हार्ड, एंड इट डेली फील्स हार्ड टू स्टडी, राइट? किस किस को मजा आता है पढ़ने में? आज तो बस 8 घंटे बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है, बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में. पढ़ाई इज डिफिकल्ट. पढ़ाई इज डिफिकल्ट. गोइंग टू जिम इज डिफिकल्ट. टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्फ इज डिफिकल्ट. जस्ट इमेजिन मम्मी रोज गर्मी में खड़े होके, चाहे वो गर्मी हो सर्दी हो, रोटी बनाती है. कितनी गर्मी होती है ना किचन में, बट क्या वो कभी कहते हैं कि आज नहीं बना रही, आज बहुत गर्मी है? कभी कहा है मम्मी ने ऐसा? गर्मी हो सर्दी हो, शी डज दैट. वाई? क्योंकि वो आपसे प्यार करती हैं. क्योंकि वो हमसे प्यार करती हैं. ऐसे ही अगर हम खुद से प्यार करते हैं तो चाहे कोई चीज डिफिकल्ट भी होगी, चाहे वो स्टडिंग हो, चाहे वो वर्कआउट करना हो, चाहे वो कुछ और करना हो, वो हम करेंगे क्योंकि वी वैल्यू द रिजल्ट. आप लोगों को एग्जाम्पल सही लगा बटरफ्लाई वाला? आप में से किस किस ने साइकिलिंग सीखी है? किस किस ने साइकिलिंग सीखी है? गौरी ने, मयूख ने, शिवानी ने, कत्यायनी ने, अनुष्का, रुद्राक्ष, तोषनी, एंजल, एवरीवन. कौन कौन गिरा है साइकिल चलाते वक्त? यस, एवरीवन. पर कभी आपने ऐसा सोचा कि अब मैं साइकिल नहीं चलाऊंगा? तो यहाँ कह रहे काफी बार गिरे हैं, पर हमने करा. तो ऐसे ही हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, पर हम कभी रुकते नहीं है. हम क्या करते हैं? बार बार खड़े होते हैं और दोबारा से क्या करते हैं? उसे आगे करने की, दोबारा से वी ट्राई एंड कम बैक एंड स्टार्ट अगेन. नेक्स्ट इज mental self care. Actually we are short of time and we have to cover the program also. So then it is mental self care. Mental self emotional self care is जब हम समझे कि हमारे different emotions हैं, जैसे we feel loved, cared, we feel frustrated, we feel angry, we feel lonely. तो ये सारे activities हैं जो हैं. और फिर आती है mental self care कि हमारे mind में क्या चल रहा है. That is understanding we are what we consume. हम इसको आगे और डिस्कस करेंगे. पहले आप लोग बताइए, आपको क्या लगता है हमारे माइंड में हम कैसे थॉट्स जो आ रहे हैं वो कैसे आ सकते हैं? बताइए. चैट प्लीज, चैट. ओहो, चैट. बेस्ड ऑन करंट सिचुएशंस, यस यस, व्हाट वी सी. वेरी गुड. व्हाट एल्स? इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर एक्टिविटीज, व्हाट वी से. तो by hearing people or seeing other things online, what we hear, yes. तो हमारे अंदर चीजें कहाँ से आती हैं? या तो हमारी सोशल मीडिया से आती है, जैसा हम कंटेंट व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे कंज्यूम कर रहे हैं उससे आते हैं. या फिर हम जो अपनी फैमिली में देख रहे हैं आसपास, उससे हमारे अंदर क्या आता है? क्या आता है हमारे अंदर? सोच. क्या आती है? सोच. तो अगर हमें इसको सही करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? फीड गुड फॉर द माइंड. हमें अच्छी चीजें कंटेंट डालना है. जैसे अभी हम सब यहाँ बैठे हैं तो हमारा कुछ अच्छा फूड जा रहा है ना माइंड के अंदर. दिस इज कहते हैं फीड गुड फूड फॉर द माइंड. तो फीड गुड क्या हो सकता है?
क्या क्या हम अच्छी चीजें माइंड में डाल सकते हैं? माइंड में डालना तो है ही, क्या क्या डाल सकते हैं बताइए? पॉजिटिव अफर्मेशंस, यस वेरी गुड, पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का क्या मतलब होता है? जैसे हम बोलेंगे आई कैन एंड आई विल, और जैसे, और पता है हमारे जो पुराने लोग होते थे ना, वो सब काम करते थे, दे न्यू एवरीथिंग, बट आज हमने उसे एक अच्छा नाम दे दिया है। फर्स्ट इज पॉजिटिव अफर्मेशन, दैट इज, याद है घर में बोलते हैं ना, मम्मी पापा वगैरह बोलते हैं ना, किस किसके घर में बोलते हैं, अरे ऐसा नहीं बोलते, जीप पे सरस्वती जी विराजती हैं, ये सच हो सकता है ना? बोलते हैं ना? यस, सबके घरों में बोलते हैं। कभी भी जीप पे क्या विराज जाएंगी? सरस्वती जी। कभी भी जीप पे क्या विराज जाएंगी? सरस्वती जी। और ये चीज क्या हो जाएगी? सच। यस, सानवी बता रही है, शुभ शुभ बोलो, ऐसे अशुभ बातें नहीं करते। अगर आपने कभी घर में बोला राम नाम सत्य है, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं बोलो मत, ये क्या है, शुभ शुभ बोलो। बट अब उन्हें कैसे समझाए, राम नाम सत्य है, इसमें बुरा भी क्या है ना? राम का नाम क्या है? सत्य है, मीन्स द नेम ऑफ लॉर्ड राम इज ट्रूथ। पर लोग समझते नहीं है। तो द थिंग इज कि हमें जो माइंड है उसे क्या देना चाहिए? गुड फूड देना चाहिए। तो अभी तक हमने डिस्कस किया फिजिकल केयर, इमोशनल केयर एंड मेंटल सेल्फ केयर। So how many of you are interested in secret revelation time? How many of you are interested in that secret? Everyone, okay. So उसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ठीक है? चलिए, so ये मैं, अभी तक हमने डिस्कस किया योर बॉडी, योर इमोशंस, योर मेंटल वेलबींग। बट अगर हम सब ने बोला योर 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 तुम्हारा, तो एक्चुअली में हु इज ही? तो हम किसके बारे में एक्चुअली बात कर रहे हैं? तो ठीक है, इसके अंदर मुझे सबकी वीडियोस ऑन चाहिए। सो दिस इज अ वेरी इंटरैक्टिव एक्टिविटी। सो सब लोग जैसे जैसे मैं करूंगी वैसे वैसे करेंगे। एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, प्लीज। तो जिसका भी कैमरा ऑफ होगा, हम समझ जाएंगे कि आप वहां नहीं हैं। So yes, yes, everyone, please switch on your cameras. Everyone, everyone, yes, quickly, please. Varnika, Vihan, Vrinda, Rudraksh, everyone. Okay, so let us do the activity. This is my head. You all can unmute also yourselves. I think it is. Okay, you all can unmute also. This is my head. I am not this head. This is my hand. This is my hand. I am not this hand. This is my face. I am not this face. These are my shoulders. I am These not are my this shoulder. shoulders, This but is I'm my not body. shoulder. I am not this. I am not But body. So the question arises once again, then who am I? Who am I? बताइए. Atma. Yes, soul. तो हमने क्या डिस्कस किया? योर बॉडी, योर इमोशंस, योर मेंटल वेलबींग। बट हमने ये तो सोचा ही नहीं कि योर 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 एक्चुअली में है कौन। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारा मेंटल वेलबींग कैसा है, हमारा फिजिकल बॉडी कैसी है, हमारा इमोशनल वेलबींग कैसा है, पर एक्चुअली में वो व्यक्ति कौन है? टेल मी। सोल। वो कौन है? Soul, Atma. यस। सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू नो हाउ वी कैन टेक केयर ऑफ सोल? यू ऑल आर इंटरेस्टेड टू नो? यस, ओके, लेट मी जस्ट। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक मैंने एक्रोनिम बनाया, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दैट इज सेल्फ केयर, ठीक है? एस इज फॉर स्माइल डेली। S is for smile daily. We should practice gratitude.
हमें जर्नलिंग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? जर्नलिंग। हमें एक डायरी बनानी चाहिए और उसके ऊपर ना रोज सिर्फ एक पॉइंट लिखना चाहिए कि आज मेरी लाइफ में क्या अच्छा हुआ, सिर्फ एक पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, आज मैंने कुछ गलती करी थी पर मम्मी ने मुझे डांटा नहीं। आज मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए। आज मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। सो दिस इज सेल्फ केयर का एस मीन स्माइल डेली, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड, काउंट योर ब्लेसिंग्स ईच डे। ई से एक्सरसाइज डेली, बाहर खेलने जाएं। एल इज लिसन टू गुड म्यूजिक, वेल विशर्स। जैसे अभी आप हम सब मिलके क्या कर रहे हैं? यू आर लिसनिंग मी, यू आर लिसनिंग मी। तो ये क्या है? लिसन टू गुड म्यूजिक एंड योर वेल विशर्स। एफ, फॉरगिव सेल्फ एंड अदर्स फॉर देयर मिस्टेक्स। ये हम सबके अंदर प्रॉब्लम होती है। जब हमसे कोई गलती होती है तो वी एक्सपेक्ट कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो हमें बहुत जल्दी फॉरगिव कर दे, पर हम कभी भी खुद, जब कोई और हमारे प्रति कुछ गलती करता है, वी होल्ड अ ग्रज इन आवर हार्ट। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कनेक्ट विद डिवाइन, चैंट। तो आजकल आप सब बहुत, आई एम श्योर आप सब लोग बहुत ही पायस फैमिली से हैं, एंड आप सबको पता है कि वी हैव टू कनेक्ट विद समथिंग हायर एंड वी ऑल्सो चैंट। तो इन इस्कॉन वी फॉलो मंत्रा मेडिटेशन। सो मंत्रा मेडिटेशन क्या होती है? हम माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं एंड वी चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। देन एक्नॉलेज योर लिमिटेशंस। हमें ना, हम लोग ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एस्पिरेशंस रखते हैं और कभी कभार हम अपने आप से बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं कि नहीं, मुझे 99% लाने ही है। इट इज गुड कि हम 99% लाएं, बट अगर मान लो आपकी तबीयत खराब हो गई है तो हमें ऐसे नहीं हो जाना चाहिए ओ अब तो मेरी जिंदगी खराब हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें समझना चाहिए कि सिचुएशन ऐसी थी, मैं नहीं ला पाया, बट यस आई विल वर्क फर्दर, राइट। नेक्स्ट, रिफ्लेक्ट डेली। वही जो हमने स्माइल का एस का प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड किया था, दैट इज जर्नलिंग। लिखना कि हम लोगों को कैसे लाइफ में ब्लेसिंग्स मिली हैं। ई से इंगेज योर सेंसेस इन समथिंग प्रोडक्टिव। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम सब लोग क्या कर रहे हैं? आईज से देख रहे हैं, ईयर से सुन रहे हैं। सो यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन समथिंग प्रोडक्टिव फॉर योर सेल्फ डेवलपमेंट। तो ये कुछ कोट्स हैं जो हमें समझने चाहिए। सेल्फ केयर क्या एक नेसेसिटी है, हमें ये नहीं सोचना चाहिए एक लग्जरी। आप में से किसको इसको लगता है रोज 6 से 8 घंटा सोना एक लग्जरी है? आपको पता है, आप जो लोग काम करते हैं वो लोगों को लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ी लग्जरी है। नहीं, मेनी पीपल हु आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स दे डोंट गेट टाइम टू स्लीप, बट सेल्फ केयर क्या है? नेसेसिटी, और हमें इसको लग्जरी नहीं समझना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे तभी हम दूसरों का ध्यान अच्छे से रख पाएंगे, राइट? एम आई Yes. राइट और रॉन्ग? यस मैम। Yes, ma'am. यस। तो अभी आप लोग सोचेंगे हम क्यों करें, हम ये क्यों करें, हम नहीं कर रहे सेल्फ केयर, क्या मिल जाएगा इससे? तो आप सब लोग इन लोगों का नाम लिख सकते हैं और इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। एल्फर्ड फोर्ड, विल स्मिथ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जॉर्ज हैरिसन, इन सब लोगों ने क्या किया? सेल्फ केयर को क्या करा? प्रैक्टिस करा। सेल्फ केयर को क्या करा? प्रैक्टिस करा। और आज ये लोग क्या है? बहुत सक्सेसफुल हैं। और उनके ही कॉन्ट्रास्ट में देखेंगे, माइकल जैक्सन है, वो लोनलीनेस की वजह से मर गए। इतने बड़े कैफे कॉफी डे, आप, मुझे पता भी नहीं आप में से कितने बच्चों ने सुना होगा कैफे कॉफी डे। कैफे कॉफी डे का नाम सुना है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड द नेम? यस, सम ऑफ यू नो, वेरी गुड। यस, सो यू ऑल नो कैफे कॉफी डे, राइट? उसकी जो बिजनेस उसके जो बिजनेस ओनर हैं उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था। क्या कर लिया था? सुसाइड। जस्ट इमेजिन। तो क्या क्या लैकिंग था? सेल्फ केयर। तो हम सेल्फ केयर लैक ना करें, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हम लोग अपने आप को थोड़ा टाइम दें और इन सब चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें. सो वी कैन एंड द सेशन नाउ एंड हम थोड़ा सा वी कैन डिस्कस. आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, सो वी ऑल कैन प्लीज डिस्कस सम क्वेश्चंस. Any questions? Yes, Mayuk. Yes, Angel. पहले मयूक आप पूछ रहे हो? मुझे आवाज नहीं आ रही है. एंजल, यस आप बोलो जब तक. कृष्णा माता जी, तो थोड़ा आई हैव तेज टू बोलो. डाउट. मेरे टू डाउट्स थे. एक कि यू सेड दैट वी शुड गो आउट टू प्ले any sport or maybe in the park, but क्योंकि अब I am in a different board. I don't study in CBSE. I have IGCSE, that is Cambridge board. तो वहाँ पे studies are very different and it is difficult. So like अगर मैं एक भी दिन skip कर दूँ तो मेरा syllabus slack हो जाता है. एंड सेकेंडली कि मेरे फ्रेंड्स नहीं है इतने, क्योंकि आसानी से किसी के साथ घुलती मिलती नहीं हूँ. आई एम एन इंट्रोवर्ट. तो मतलब मुझे ऐसे किसी के साथ है नहीं कोई जिसके साथ मैं जाके खेल सकूं. वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है. आपके पास घर पे मम्मी है, मम्मी पापा के पास टाइम होता है संडेज को? हम्म. सो मैं आपको बताती हूँ. मैं चाहे कोई सा भी बोर्ड हो ना, पढ़ाई बहुत मुश्किल रहती है. एंड यू आर इन आईवी बोर्ड, तो आई एम श्योर और भी मुश्किल होगी. तो इसके अंदर हमें क्या करना चाहिए? हमें ना हफ्ते में सिर्फ एक दिन बना लेना चाहिए. क्या करना चाहिए? अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहिए. मैं अपने पेरेंट्स के साथ सुबह जाती थी. हम बैडमिंटन खेल के आते थे संडे को. और वो भी अर्ली मॉर्निंग जाते थे, क्योंकि दिन में तो चलो कहीं घूमने जाना है, ये करना है वो करना है. सुबह सिर्फ 1 घंटे के लिए जाते थे खेलने. तो आप अपने घर में ये रूटीन कर सकते हैं कि हफ्ते में एक दिन हम खेलने जाएंगे. घर में वो है मेड. डू यू हैव मेड एट होम? अगर वो ज्यादा ओल्ड एजेड नहीं है तो आप उनके साथ, आप साइकिलिंग आती है आपको? हम्म. Yes, go for cycling. It is completely okay to be introvert. No problem if you are not much comfortable by making friends. No problem. You go for cycling for half an hour. Can you do that once in a week for 30 minutes? Yes or no, Angel? Yes. Yes, right? ठीक है एंजल. एंड धीरे धीरे, आप कहाँ रहते हो? I live in sector 10. Sector 10. Okay. So maybe if you will come to our temple over here, you will have some nice friends also, who are also introvert, and introverts can mix up together easily. I come on Saturdays whenever I get time in the evening. But because of studies, I don't get time. इतना time नहीं मिलता, but usually twice a month I come to, Very good, relax very myself. good. Yes, very good. So, And second, एक और question था कि due to my studies, I feel a lot stressed. And तो मेरा थोड़ा सा mental वो disturb हो जाता है, because आज भी I tried giving myself a little time because exams आ रहे, तो I स्टडी अलॉट, और मैं कभी कभी अपने आप को बहुत बर्डन कर लेती हूँ कि नहीं ये भी करना है ये भी करना है. तो मैं वो स्ट्रेस और एंजाइटी को ईज आउट नहीं कर पाती. you are in which class? 9th. 9th. Okay. तो See, एक्चुअली 9th क्या है class. कि Yes. एक्चुअली हमारे बोर्ड में क्या है कि 9 एंड 10th में दोनों में एक सिलेबस सेम होता है. तो 10th और 9th का दोनों का सिलेबस हमारे स्कूल एक ही साल में करा रहा है, ताकि नेक्स्ट ईयर हमारे पास बोर्ड्स के लिए टाइम हो. तो इतना सारा सिलेबस कवर करने में थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस फील होता है. थोड़ा एंशियस भी लगता है कि इतना सारा सिलेबस है, मार्क्स कैसे आएंगे और ये सब. Understood. So, let me tell you, सबसे पहली बात, we all should clap for her, क्योंकि उसने सबसे पहले क्या कर लिया? एक्नॉलेज. हमने डिस्कस किया था
जब हम इमोशनल उसमें से वी हैव टू एक्नॉलेज कि हम क्या स्ट्रेस्ड हो रहे हैं। नहीं तो हमें लग सकता है क्या स्ट्रेस, कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है। नहीं, वी शुड एक्नॉलेज कि हमें क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है पढ़ाई का, हमें स्ट्रेस हो रहा है इस चीज से, उस चीज से। सो फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक्नॉलेज करा कि हाँ मुझे स्ट्रेस हो रहा है। सेकंड, हमें ये समझना है कि लाइफ में स्टडीज आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट बट दे आर नॉट एवरीथिंग, राइट? दे आर नॉट एवरीथिंग। तो हमें अपना पेस अपने आप डिसाइड करना चाहिए। हमें अपना पेस अपने आप डिसाइड करना चाहिए। हमें इतना ओवरली इनग्रोस्ड नहीं हो जाना चाहिए। इसके मैं आपको 3-4 टिप्स देती हूँ जो मैं स्कूल में फॉलो करती थी। फर्स्ट इज, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं ना उसे मैं बहुत ध्यान से सुनती थी, क्योंकि जब हम ध्यान से स्कूल में सुनेंगे ना तो घर पे आने के बाद वो जो पढ़ाई का जो प्रेशर है ना वो बहुत कम हो जाता है। एंड मैं तो ऐसी बच्ची थी, आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट माई सेल्फ बट आई एम टेलिंग यू कि हमारे मतलब मुझे ना घर पे आके ना थोड़ा मस्ती करना पसंद था। तो मैं ना ज्यादा देर ना ऐसे पढ़ाई वढ़ाई ऐसे नहीं कर सकती थी। तो मैं क्या करती थी, अम, जाती स्कूल में, जैसे टीचर गई भी है ना उस टाइम में ना हम सारे फ्रेंड्स मिलके अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे, जो नोट्स बनाना है वो सारा उस टाइम पे कर लेंगे ताकि घर पे आके आई कैन रिलैक्स। तो जितना टाइम हम स्कूल में है उतना टाइम हम 100% कॉन्सेंट्रेशन से पढ़े। एंड सेकेंड पॉइंट, मेरी मम्मी कहती थी कि वी आर पेइंग अ थेफ्टी अमाउंट टू द स्कूल अथॉरिटीज। सो मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ी हुई हूँ। कॉन्वेंट स्कूल इज बेसिकली जो क्रिश्चियन स्कूल्स होते हैं ना, सो आई हैव स्टडीड इन अ क्रिश्चियन स्कूल। तो वहां पे बहुत स्ट्रिक्टनेस रहती है हर चीज को लेके। तो उधर मेरी मम्मी कहती थी हम बहुत पैसा देते हैं तो यू शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द टाइम एंड फ्रॉम द टीचर्स आपको बेस्ट निकालना चाहिए। तो जो हमारे जो डाउट्स हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स है स्टडी से रिलेटेड, वो हमें उनसे डिस्कस करनी चाहिए। थर्ड, हमें अपने ना छोटे छोटे गोल्स बनाने चाहिए। हम क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है वो इतना सारा सिलेबस है, मैं तो ये कर ही नहीं सकती। राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? ये सबका क्वेश्चन होगा, राइट? सबको ऐसा लगता है ना? Yes. हम डर जाते हैं ना जब पेपर आते हैं। क्यों डर जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारा सिलेबस है। तो अगर हम क्या करेंगे, छोटे छोटे उसे कैप्सूल्स में बांट देंगे तो हमें ज्यादा स्ट्रेस फील नहीं होगा। एंड लास्ट, अभी ये थोड़ा थ्योरेटिकल लगेगा बट लेट मी टेल यू, जस्ट बाय चैंटिंग, और ऐसे नहीं, आप बस से जाते हो स्कूल या ड्राइवर से जाते हो, कैसे जाते हो? Bye bus. मम्मा छोड़ती बाय है। बस। सिर्फ 10 मिनट्स जब आप बस में हो ना, आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आप उसे चैंट करके जाओ। जस्ट ट्राई टू स्पीक फॉर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, जितने मिनट्स आप कर पाते हो। ठीक है? आप देखना आपको बहुत मेंटल रिलैक्सेशन मिलेगा। अभी हमने क्या डिस्कस किया? हमें मेंटल सेल्फ केयर करना है, इमोशनल सेल्फ केयर करना है, हमें फिजिकल सेल्फ केयर करना है। पर ये सब किसका है? योर सेल्फ केयर। एंड एक्चुअली में हु आर वी? सोल। तो अगर सोल हेल्दी रहेगी तो हम फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस क्या कर पाएंगे? डील। एम आई राइट एंजल? यू विल ट्राई? और जब चैंटिंग मैं करती हूँ, लाइक मैंने वो वाला ले रखा है जो इस्कॉन से लिया था, जो बटन होता है उस पे प्रेस करते हैं, तो मैं यस, वो वेरी स्कूल भी ले जाती हूँ, क्योंकि जब भी मेरे फ्री पीरियड्स होते हैं तो मैं चैंटिंग करती हूँ लाइब्रेरी में बैठ के। वेरी तो गुड। बट बस एक चीज होती है कि जब मैं चैंट कर रही होती हूँ तो कभी कभार मेरे माइंड में थोड़े नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, क्योंकि मैं अकेले होती हूँ, मैं कुछ सोच नहीं रही होती तो अचानक से कुछ नेगेटिव आने लग जाता है। तो उसको कैसे मैं निकाल सकती हूँ? इट इज कॉमन। आपने घर में सफाई करी दिवाली की? दिवाली हाँ, की मतलब सफाई अब की स्टार्ट होने वाली है। है ना? तो क्या होता है, सारे हम कर तो सफाई रहे होते हैं पर गंदगी निकल रही होती है, राइट? सारा डस्ट निकल रहा है। तो कोई अगर घर में आएगा वो कहेगा ये क्या है, ये क्यों इतना गंदा कर रखा है? बट जो कर रहा है उसे पता है ये क्या हो रही है, सफाई हो रही है। तो व्हेन वी चैंट वी मे थिंक कि अरे ये तो नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, तो एक्चुअली में वो क्या हो रही है, सफाई हो रही है। सो वी हैव टू कंटिन्यू। और इसका एक और तरीका होता है कि हम एक छोटा सा पॉकेट कार्ड होता है उधर
छोटा सा कृष्णा की कार्ड रख लिया या कुछ रख लिया, तो हम वो कृष्णा को देख सकते हैं। तो फिर हमारा जो प्रॉब्लम है ना, नेगेटिव थॉट्स, हम अच्छा स्कूल में पॉसिबल नहीं अगर मान लो लेके जाना, तो एक पेपर लिया, उसके ऊपर लिख लिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो पूरे एक पेपर पे लिख लिया और वो सामने रख लिया और फिर चैंट कर रहे हैं। तो फिर हमारा जो एक्चुअली हमारी ना सेंसेस है ना, वो एंगेजमेंट चाहती हैं। तो बाय सीइंग आवर आईज कैन गेट एंगेज्ड, बाय स्पीकिंग आवर टंग इज गेटिंग एंगेज्ड, बाय हियरिंग आवर ears are getting engaged, and by touch of that clicker और beads हमारी स्किन एंगेज हो रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे लिए चीजें बहुत और इजी हो जाएंगी। ठीक है एंजल? एंड आई एम वेरी हैप्पी यू आर आस्किंग क्वेश्चंस, एवरीवन शुड आस्क क्वेश्चंस। यस ज्योति, प्लीज। यस यस, प्लीज अनम्यूट। अनम्यूट अनम्यूट। मैम, यू कैन हियर मी? यस यस। मैम, मेरा आपसे बस ये एक क्वेश्चन है, मतलब ये तो अभी मेरे से पहले किसी ने पूछा कि एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस जो है वो हो जाता है, बट हम मतलब हरे कृष्णा जाप के साथ सुबह उठने के बाद, मतलब प्रभु का ध्यान करने के बाद पढ़ाई भी करते हैं, बट मेरे मोस्टली मैं मेडिटेशन के साथ पढ़ाई करती हूँ, बट जितना मैं अपने आप से एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे इस लेवल पे मार्क्स आने चाहिए, इतना स्कोर होना चाहिए, उतना मैं नहीं कर पाती। तो मतलब उस सिचुएशन में बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि मैंने तो मतलब मेहनत भी की थी, जस्ट लाइक थोड़ा मैंने पढ़ा भी था और गोल भी बनाया था कि मेरे को ये चाहिए, ये करना है, तो फिर भी मेरे को अगर मैंने अचीव नहीं किया तो उसके लिए। हाँ ये होता है, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हमारा क्या है, हमारी कर्म। कर्मास, कर्म के ऊपर जैसे क्या है, हमारा कंट्रोल है। पर हमारा कंट्रोल किसके ऊपर नहीं है, रिजल्ट के ऊपर। तो हमें रिजल्ट के से अटैच नहीं होना चाहिए। पर कौन डॉक्टर है वो सोचता है कि आज मैं ऑपरेशन करने जा रहा हूं और वो सक्सेसफुल ना हो, पर कभी कभार ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि उसे डॉक्टरी छोड़ देनी चाहिए? नहीं ना। मैम। अब ये तो उस व्यक्ति के ऊपर है, ट्रीटमेंट वो दे सकते हैं, बट अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन विल ऑफ कृष्णा ऑल्सो। सो ऐसे ही हम अपने एफर्ट्स, अगर हम ऑनेस्ट है अपने आप से और हमें लग रहा है नहीं यार मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, आई गिव माई 100%, बट स्टिल आई कुडंट स्कोर, सो देन वी हैव टू एक्सेप्ट कि ठीक है दिस इज विल ऑफ कृष्णा। बट हमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए और हमें ये भी समझना चाहिए, हमें ऐसे नहीं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाए और सोचें ठीक है भगवान जो मार्क्स लाने होंगे ले आना अपने आप, ये तो लिखा है ना प्री डिस्टाइंड है, ऐसा नहीं है। तो कर्म करना है, बट एट द सेम टाइम हमें नेगेटिव नहीं होना है और हमें सोचते रहना है कि ठीक है इट इज माई कर्मास एंड आई विल परफॉर्म बेटर। तो धीरे धीरे आएगा, ये चैंटिंग करेंगे तो धीरे धीरे आएगा। यस थैंक यू वेदिका। मैम। थैंक यू मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण। यस वेदिका। मैम तो आज जैसे आपने बोला चैंटिंग करनी चाहिए, बट हम समटाइम्स हम लोग कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो उस पे कंसंट्रेट कैसे करें मैं ये जानना चाहती हूँ। साइकिलिंग सीखी थी आपने? यस। कैसे सीखी थी? मतलब चला चला के एंड देन आई यस फॉल चला, डाउन। यस चला चला के। तो यू आर इन विच क्लास? आई एम इन 6th। 6th। आपने इंटीजर्स पढ़ा है अभी? यस। तो इंटीजर्स जब पहली बार कर रहा था तो इजी था या मुश्किल था? इट वाज हार्ड बट Hard. नाउ आई अंडरस्टैंड दैट इट इज इजी। Yes. So everything in this life requires practice. जब हम सब ने लाइफ में सबसे पहली बार ए बनाया था, तो वो भी हमें क्या था, बहुत मुश्किल लग रहा था। हमारे टीचर ने हमें हाथ पकड़ा था, उसने सिखाया था स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, फिर हमने ए बी सी डी सीखा था। जब हमें टीचर ने सबसे पहली बार सिखाया था 4+2 6, तो वो भी मुश्किल लग रहा था। पर आज हम क्या कर रहे हैं, -2 + 4 भी कर रहे हैं।
तो वो भी इजी लग रहा है। तो कैसे इजी लगा? प्रैक्टिस। ऐसे ही हमारी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी चैंटिंग में? जस्ट बाय सिंपली डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग एंड डूइंग। श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर है वो कहते थे अगर किसी को ड्रंकर्ड बनना है तो उसे क्या करना चाहिए? ड्रिंक, जो लोग ड्रिंक करते हैं उनके साथ रहना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को आईएएस बनना है तो उसे कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? जिनका आईएएस का माइंडसेट है। ऐसे ही जिन्हें अच्छी चैंटिंग करनी है उन्हें ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जो अच्छे से चैंट करते हैं। और खुद मैंने जो पहले एंजल को भी बताया, हम हरे कृष्ण महामंत्र लिख सकते हैं, है ना, और उसको सामने रख सकते हैं एंड फिर रीड करते हुए बोलें, तो दैट विल बी वेरी इजी। ठीक है वेदिका? Yes, ma'am. थैंक यू। Thank you. यस राधिका। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे माता कृष्णा। जी, मेरा ना क्वेश्चन इज अ लिटिल सिमिलर टू एंजल माता जी का क्वेश्चन, बट ऐसा है कि लाइक जैसे आप देख रहे हो कि दुनिया इतनी कॉम्पिटिटिव होती जा रही है, सो इट्स जस्ट सो हार्ड कि आप लाइक यू नो अपने आप पे हम फोकस कर पाए। जैसे लाइक अगर थोड़ी देर भी अपने लिए टाइम दे दे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर ऐसा लगे कि यार आज है ना वॉक करके आ जाती हूँ, सो आई डू एनी फिजिकल एक्टिविटीज, बाहर जाती हूँ, देन अचानक से गिल्ट ट्रिप हो जाता है कि यार ये तो मैं बाद में भी कर सकती थी, पहले पढ़ लेती, पहले शायद रिवाइज कर लेती, तो शायद मुझे इतना गिल्ट ना होता। तो हाउ टू स्टॉप दैट प्रोक्रास्टिनेशन और अपने आप को एक्चुअल में मैं कैसे ऐसे गिल्ट ट्रिप ना करूं बार बार। How many of you feel eating healthy food is good? How many of you feel? कहाँ है राधिका? कहाँ है राधिका? आपको लगता है अच्छा खाना चाहिए? Yes, ma'am, definitely. अच्छा, so you are in which, what are you doing currently? Ma'am, Mataji, I am in 9th grade. You are in 9th grade. तो आपको अगर वो पसंद है, अब आप मुझे बताओ, अगर आपसे कोई कहे कि यार क्यों खाना बनाने में टाइम वेस्ट करना है, ऐसा करना स्विगी कर ले, so do you think in long run your body will be benefited with that? नहीं। अभी जैसे कोविड आया था तो हम सब लोग क्या कर रहे थे? बार बार हाथ धो रहे थे, बार बार सैनिटेशन का ध्यान रख रहे थे। तो देखा जाए तो इट इज एन एक्स्ट्रा बर्डन। क्यों कर रहे हैं ना हम ये सब, बट तब भी हम कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारी सेफ्टी के लिए। तो सिमिलरली हम लोग ये जो गिल्ट ट्रिप पे चले जाते हैं, हमारा वाई जो है ना वो क्लियर नहीं होता है। जब हमें किसी भी चीज का वाई क्लियर होगा हम उसे अपने दिल से करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वही, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था पहले, एक मदर जो है वो कुकिंग कर रही है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, उसे दैट इज बिकॉज शी लव्स हर चाइल्ड। सिमिलरली एक फादर है, वो अर्न करने जा रहे हैं पैसे, उनका मन नहीं है, बहुत थक गए हैं, बीमार है, पर तब भी जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ऐसे ही जब हम ये समझ जाएंगे कि यार मुझे अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, सिर्फ पढ़ाई से नहीं हो पाएगा। और पता है मैं आपको बता रही हूँ, पढ़ाई भी हम तब अच्छी कर पाते हैं जब हम फिजिकली ज्यादा अच्छे हैं। जब हम लॉन्ग सिटिंग्स दे पाएंगे ना तब हमारी पढ़ाई अच्छी होगी। पर लॉन्ग सिटिंग्स कब दे पाएंगे? जब हमारी बैक स्ट्रेट रहेगी, जब हम ज्यादा फोकस तरीके से पढ़ पाएंगे। और वो सब अच्छा आता है जब हम थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देते हैं। एम आई राइट राधिका? Yes, Mataji. तो हमें ना वाई को क्लियर करना है, क्यों मुझे पढ़ना है, क्यों मुझे फिजिकल फिटनेस करनी है, क्यों मुझे अपने इमोशंस को समझना है। जब हमारा इमोशनल क्वेश्चन सही होगा तो हम बहुत सारी चीजों से ऊपर आ सकते हैं। सो ट्राई टू नो why should I do this, like why are we attending this class right now? Because I want to grow holistically, इसीलिए मैं क्लासेस अटेंड करूं। नहीं तो अभी जाके टीवी देख सकता था, कोई अच्छा सा सीरियल आ रहा होता, कोई डांस इंडिया डांस या फिर क्या इंडियाज गॉट टैलेंट, या वो आजकल क्या देखते हैं लोग, बिग बॉस, तो ये सब चीजें आ सकती थी। बट वी चोज दिस। ये तपस्या है, बैठ के एक व्यक्ति को सुनना, बट यू चोज दिस, राइट? Yes, Mataji. यस, देयर वाज वन मोर हैंड रेज्ड। कहाँ पे हैं वो? ज्योति थी क्या? नहीं, और कौन था जिसका हैंड रेज था? ठीक है, सो नो मोर क्वेश्चंस। एंजल का था शायद हैंड। किसका? एंजल। एंजल? वो गलती आपका से था क्या? गलती से हो गया। अच्छा, ओके, एनीवन एल्स?
ठीक है, so I hope you all enjoyed the session and आप लोगों को कुछ meaningful मिला, and I hope that it would be very nice that if you all can take out some time and revise whatever we did. So how many of you will come for the next session also? Okay, 100%. Very nice. So Drishti, Ishita, you all can please take a screenshot. फिर इन सब ये लोग पक्का आने वाले हैं. Yes, so requesting everyone to please switch on their videos. एक बार तो हम एक वो ले लेंगे screenshot. जल्दी से. Yes, very nice. Now I'm feeling happy. Yes, जल्दी से screenshot. ठीक है. So thank you so much everyone. It was very nice having you all. So हमारे group के coordinators हैं Drishti and Ishita. I'll just put them on highlight also. So in case you have any problem, and you all can also just wait. Ishita का है. So if you all have any questions, उन लोगों का भी मोबाइल नंबर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन कनेक्ट टू मी ऑल्सो. ठीक है. सो ये भी कोई ऐसा नहीं, बहुत बड़े लोग हैं आप सबकी तरह. दे बोथ आर 20, 21. दृष्टि, व्हाट इज योर एज? Yes, I'm going to be 20 this year. 20. Almost. And Ishita is 19. तो ऐसा नहीं है बहुत बूढ़े लोग हैं आप लोगों के साथ. We all are army of young people. So please feel very happy and connected. ठीक है. So thank you so much everyone for joining in. Let's also thank Harshita Mataji with the Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. Ram Ram, Hare Hare. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna everyone for joining. Hare Krishna. Hare Krishna, ma'am.